Good morning to all of you. In previous class, we have studied about the chapter motion. Okay? And in the motion, we have seen about the motion in a straight line. Means हम लोगों ने वन डायमेंशनल मोशन की बात की थी. Object is moving on a straight path. And in that case, we have seen the distance, displacement, speed, velocity, acceleration, and about uniform circular motion. And also, we have studied about three equations of motion. First equation was velocity time relation, v is equal to u plus at. Second equation was s is equal to ut plus half at square, that is position time relation. And third equation of motion, that is v square is equal to u square plus 2as, that is position velocity relation. And we have seen numerical on each and every topic. And the question of the exercise, try to solve the question of the exercise, and if any problem come while solving the question, tell to me. Okay, I will explain that question to you. Now, the second chapter of physics, that is force and laws of motion. It is one of the important chapter, as all the chapter which we are studying in class 9th, all the chapter are very much important chapter. Why? Because same chapter you will get in class 11th. So concentrate on your study, and if you feel any doubt from anywhere in the chapter, feel free to ask. Okay? Now, in the first chapter, we will study, we have studied about the motion. In the second chapter, we will study about the force and laws of motion. First of all, I want to clear one thing, that equation of motion and laws of motion, there is a very much difference. The problem which student face is that कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ लेते हो और लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ लेते हो. तीन इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, तीन लॉज ऑफ मोशन भी है फॉर क्लास 9 आई एम टेलिंग. और जब एग्जाम आता है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो उस केस में आप क्या करते हो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ कर देते हो. तो नो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन ऑफ मोशन and laws of motion. So please make it clear. Okay. Now force, as in class 8, in the first chapter of physics, you have studied about force and pressure. और वहाँ पे आप लोगों को फोर्स के बारे में कुछ पढ़ाया गया था in detail. That what is a force? Force is a push or a pull. Okay, what is force? It is a push or a pull, and we or anyone have never seen the force. We have only seen the effect of the force. We feel the force. हम लोग फोर्स को फील करते हैं. हम लोग फोर्स का जो इफेक्ट होता है उसको देखते हैं. हम लोग फोर्स को कभी भी नहीं देखते हैं. हम लोग कभी भी फोर्स को देखे नहीं. सो व्हाट इज अ फोर्स? अ पुश और अ पुल. फोर्स क्या है? अ पुश और अ पुल. एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. व्हाट इज फोर्स? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. And about vector quantity, in the first chapter, you have studied, while studying that what is the difference between distance and displacement, what is the difference between speed and velocity. आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि हम लोग डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से अभी ही पढ़े हो. ओके, तो हम उसके बारे में उतना डिटेल में नहीं जाएंगे. बस ये फोर्स का है, पुश और
force is a vector quantity and there are various effect of force. There are various effect of force. So now we will study that what are the various effects of the force. फोर्स का इफेक्ट क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में, फोर्स का इफेक्ट क्या है. ओके, तो सबसे पहले काम क्या है कि सपोज करो कि आई एम टेकिंग दिस ऑब्जेक्ट. फिजिक्स में आप बॉडी बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, दोनों सेम चीज है. तो ये हमारे हाथ में सपोज करो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और ये किस पे है, रेस्ट पर है. ये ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है. अब हमने इस पे क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया. अब इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट किस में आ गया, मोशन में आ गया. इसमें आ गया, मोशन में आ गया. तो फोर्स क्या काम कर सकते हैं, फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट और फोर्स कैन मूव अ बॉडी विच इज एट रेस्ट. मतलब क्या काम किया, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट पे था, लेकिन जब हमने एक फोर्स लगाया तो इसकी वजह से क्या हुआ, ऑब्जेक्ट रेस्ट से किस में आ गया, मोशन में आ गया. तो फोर्स क्या काम कर सकता है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उसको क्या काम कर सकता है, मोशन में ला सकता है. अब सेकेंड चीज कि सपोज करो कि ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में मूव कर रहा है. सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है ऐसे हमारा, और अब हमने ये जो फोर्स लगाया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये अपोजिट डायरेक्शन में हमने इसके फोर्स लगाया. ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, एक अपोजिट डायरेक्शन में हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया. ओके, तो क्या होगा, अ फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी. ओके, तो क्या हुआ, सपोज करो कि हमने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, एक ऑब्जेक्ट है वो, सॉरी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. हमने इस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा दिया इसके अपोजिट डायरेक्शन में. अगर ये फोर्स इसके बराबर हो गया तो क्या होगा कि अब जो ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा. इसीलिए आप क्या बोल रहे हैं कि फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. थर्ड, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी. सी बात है, फोर्स क्या काम कर सकता है, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी. अगर सपोज करो एक ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है द स्पीड विल इंक्रीज. लेकिन जो फोर्स लगा रहे हैं वो मूवमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, द फोर्स विल डिक्रीज. फोर्थ, अ फोर्स कैन change the direction of a body. फोर्स का काम कर सकता है किसी भी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. फिर फोर्स कैन चेंज the shape of a moon. Okay, so these are the various effects of the force. ये क्या है, फोर्स के इफेक्ट है. ये फोर्स को हम फील कर सकते हैं, फोर्स के इफेक्ट को हम देखते हैं, लेकिन फोर्स को हम कभी भी देख नहीं सकते. So this is about the force and effect of the force. In the next class, we will talk about the type of force, that is balanced force and unbalanced force. Thank you. God bless you.